Welcome to this lecture on Introduction to Uniform Continuity and its Geometrical Interpretation. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Prince and Shantanu. So today we will start with section 5.4, which is your uniform continuity. Okay. So we will recall the definition of continuity first for that. What was the definition of continuity? Function should be continuous throughout is an interval. So is this whiteboard visible to everyone? Yes, sir. Fine. So what was the definition of continuity? So we are going to start with uniform continuity. So for that we will first recall the definition of continuity. Yes. Recall the definition of continuity. What was that? Sir, f is a function from A to R where A is the subset of R. Then for any epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that mod of fx minus fc less than epsilon for every delta neighborhood of x belonging to Yes. A. So a function f is said to be continuous on A if क्या हुआ? It should be continuous at each point of A, right? A function f is Yes, said to sir. be continuous on A if for each A belonging to A, क्योंकि A पे continuous होना चाहिए. It should be continuous होना चाहिए. So for each A belonging to A and for each epsilon greater than 0. So हर एक epsilon के लिए there should exist a delta, and now this delta will depend on what it will depend on. It will depend on Epsilon. both A and epsilon because A के terms में definition define करते हैं ना. So this delta will depend on A as well as epsilon greater than 0 such that fx minus fa या c कर दो इसे because हमने c पे define करा हुआ है. So let us call it as c. Fx minus fc is less than epsilon whenever your x minus c is less than delta. So this delta depends on c and epsilon both, right? क्योंकि यही होती है ना continuity की definition. अब f is continuous at a if and only if f is continuous at c for all c belonging to a, right? So what does this implies? This is if and only if for each c belonging to a and for so अब c fix कर लिया है. Now for each epsilon greater than 0 there exists delta. Now this delta because we have fixed c, so ये c पे depend करता है ये delta. It may depend, it may not depend, but हम generally हम लेते हैं कि अगर depend भी कर रहा है तो we don't have any problem with this. So this delta depends on c and epsilon both such that fx minus fc is less than epsilon whenever your x minus c is less than delta, right? So function f is said to be continuous on the set A if for each c belonging to A and for each epsilon greater than 0 there exists delta depending on c and epsilon. ठीक है? Depending on both c and epsilon. ठीक है? So c और epsilon दोनों पे depend करेगा such that fx minus fc is less than epsilon whenever x minus c is less than delta. Now what happens in uniform continuity is, so let us now define the definition of uniform continuity. So uniform continuity में क्या होगा? Our function this delta जो हमें मिल रहा है, this delta will not depend on c. This should be independent of c. अगर ऐसा कोई delta मिलता है that is independent of the point you are taking, point you are considering, then वो uniformly continuous कहलाता है function. ठीक है? So this is the basic difference. Is it fine? So a function f from A to R is said to be uniformly
continuous on A if for each epsilon greater than 0 there exists delta. So this depends on epsilon only, depends on epsilon only. So this delta depends on epsilon only such that क्या होगा, fx minus fy such that for all xy belonging to belonging to A with x minus y less than delta, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, fx minus fy is less than epsilon whenever x minus y is less than delta. So अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कंटिन्यूटी में हम what we used to do, कंटिन्यूटी में क्या होता था, let us take a Cartesian this. Okay, so let us define this. Suppose this is our some function, this is our A, this is our B. So continuity में क्या होता है, continuity में we fix a point, कोई भी arbitrary point C fix करते हैं, then we take this कि C minus delta to C plus delta. So its range should lie between. So suppose this is your, so this is your FC. Then what we do is we call that it should lie between FC plus epsilon to FC minus epsilon, right? So our aim is to find a delta such that any point around this interval, any point in this interval C minus delta to C plus delta should lie in this, right? If you look at this, okay, so your this range, this, in fact it will be this. Okay, so this f of C minus delta to f of C plus delta is this area which is contained in this area. So this is your continuity. So you will fix a point. So हर point के around ऐसा होना चाहिए. But in uniform continuity, what happens is you have not fixed the point. You have not fixed any point C, right? You have not fixed any point C. So what will happen? Yes. So you have not fixed any point C. Let us again takes a similar function. So this is your A. This is your B. So now what happens is that any epsilon, you have a delta such that if you pick any 2 points x minus y and x minus y and x, so any 2 points if you will pick x minus y, x and y in this interval, then what will happen such that their distance, so this distance x minus y is less than delta, then what will happen is the distance of fx minus fy, so this is your fx, this is your fy, right? So this one is your fx and this one is your fy, right? So this is your fx, this is your fy. So their distance, this distance should be less than epsilon. ठीक है? This distance should be less than epsilon, right? So यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में क्या, इसमें कंटिन्यूटी और इसमें क्या डिफरेंस हो गया? सो इसमें अब यू आर पिकिंग एनी पॉइंट अराउंड दिस, राइट? यू आर पिकिंग एनी पॉइंट एक्स हेयर, कोई भी पॉइंट इस इंटरवल में सी के अराउंड पिक कर रहे हो. सो यू हैव फिक्स्ड अ पॉइंट सी and then you are taking the distance between x minus c and you are saying that fx minus fc will be less than epsilon, right? So यहाँ पे one point is changing, यहाँ पे दोनों पॉइंट चेंज हो सकते हैं. So ये पूरा इंटरवल में you can take this.
ठीक है, इज इट क्लियर? सर यानी कि अगर इंटर पे Yes. किसी दो पॉइंट की डिस्टेंस कम है तो फिर फंक्शन की डिस्टेंस भी कम हो जाएगी। हाँ राइट राइट राइट। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देर इज अ बिग राइज, तो यहाँ पे हमें डेल्टा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी बहुत बड़ा डेल्टा भी काम कर जाता है क्योंकि यहाँ पे राइज नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। सो जो डेल्टा यहाँ पे काम कर रहा है दैट डेल्टा माइट नॉट वर्क हियर, अगर ये एप्सिलॉन, जैसे हमने एप्सिलॉन छोटा क्यों लिया होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक सम फंक्शन, एक अच्छा सा फंक्शन ड्रॉ करते ही हैं कुछ पॉइंट्स के साथ, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड इट। ओके, let me just take a function, ठीक है। so this is a function, let me draw some function जिसमें कहीं पे ज्यादा राइज हो रहा है, कहीं पे कम राइज हो रहा है, ठीक है। so and there should be huge rise here, ठीक है, is it fine? यस सर। let me just mark it, numbers के terms में represent करते हैं so that we will be able to, yeah, okay. So this is our say 1, so 0 1 2 3 or 2 3 4, okay, and take it as 5, ठीक है, राइट, ओके सर। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, लेट अस टेक c1 इक्वल टू दिस, c1 इक्वल टू ये ले लेते हैं 2, c1 इक्वल टू 2 एंड c2 इक्वल टू ले लेते हैं 4.8, ठीक है, c2 इक्वल टू 4.8, राइट, एंड लेट अस मार्क इट एज, यस सर। so this you can take as 1, this as 2, so 3 4 5 6 7 8 and so on, right? ठीक है, ओके। नाउ लेट, अब ये C1 पॉइंट है, इसके अराउंड कंटिन्यूटी देखेंगे तो जैसे एप्सिलॉन को फिक्स कर लिया, लेट अस टेक सम एप्सिलॉन, सो एप्सिलॉन को ले लेते हैं, लेट अस टेक इट 1/4, ठीक है, एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4 वी हैव फिक्स्ड, फाइन। अब C1 के अराउंड कौन सा डेल्टा की वैल्यू क्या लें कि काम कर जाए हमारा, अगर इफ वी टेक डेल्टा इक्वल टू 1/2, if we take delta equal to 1/2, delta 1 equal to 1/2, then C1 minus delta 1 क्या होगा, थ्री बाय टू। so C1 minus delta 1, C2 or C1 plus delta 1 will be 3/2 and 5/2. so this will be your 3/2 and 5/2, so this is 2.5 and right 1.5 and 2.5, this is your C1 minus delta 1, this is your C1 plus delta 1, ठीक है। अब इसकी इमेज कहाँ जाएगी, देखो let us draw its image, इसकी इमेज कहाँ जाएगी, so this is going to this and this will come here, ठीक है। so इसकी इमेज जो है तुम्हारी कहाँ आ रही है, if you will draw it, fine, यस सर। ये इसको हाफ ले लो क्योंकि तब आसानी से दिखेगा हमें, ठीक है, let us take it half, ठीक है। so your f of c1 is here, right, वैसे तो 1/4 भी काम कर जाता है लेकिन 1/2 सही है अपने लिए, so this is your f of c1, right, यस सर।
So this is your f of c1. So the interval around f of c1 will be, so clearly for any x belonging to 1.5 to 2.5, your fx lies in, fx belongs to the interval f of c1 minus epsilon. f of c1 minus half and f of c1 plus half. Yes, f of c1 minus half and f of c1 plus half, right? It belongs to this set f of c2 plus half. Yes sir. ठीक है. Now let us see here. अब यहाँ पे क्या हो रहा है c2 के पास, c2 is above 4.8, right? c2 is above 4.8. अब अगर यही डेल्टा लेता मैं तो क्या होता, ठीक है. सपोज ये फंक्शन जो आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, इसे 5 तक नहीं रखते हैं क्योंकि हाफ लेना है, तो या c2 को जो है लेट अस नॉट टेक इट दिस, ठीक है, इसको ले लेते हैं हम, वही ले लेते हैं 4.4 ले लेते हैं, सो दैट इट कम्स इन दिस इंटरवल ओनली, ठीक है. So we take it as 4.4. Then your c2 minus epsilon, c2 minus delta 1 to c2 plus delta 1, what will be this? 3.9 to 4.9, right? So this is your 3.9. Yes, this is your 3.9. This is your 3.9 and this is your 4.9. So यहाँ पे, so this is your 3.9. This is your 4.9. So now if we will map its image, where it will go, and this is your 4.4. So let us draw its image. ठीक है, और ये वाला कहाँ जा रहा है, ओके. सो ये तो अपना ऑलमोस्ट यही वाली लाइन हो गई, ठीक है. दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3.9 ही आ रहा है ये, ओ 2.9, राइट. और ये वाला क्या आ रहा है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 7.8, राइट. दिस इज योर, yes sir. so this value is f of f of 3.9 is approximately your 2.9 and f of 4.9 is approximately your 7.8, right? Yes. Yes sir. So is this interval, so this interval f of 3.9 to f of 4.9, is it contained in your this f of 4.4 minus half to f of 4.4 plus half, is it contained in this? 4.4 is this, your approximately 3.8. So is this interval contained in this? This is your 2.9 and 7.8. So definitely it is not contained in this, right? Yes sir. Because if you pick Yes, sir. around something around, if you pick 4.8, then its image will be almost 7, which does not belong to this interval, right? The interval around this point. So yeah, this is your f of c2. So the interval around this is this. Yeah, this is your f of c2 plus epsilon. This is your f of c. So इसमें नहीं आ रहा हमारा इसका image, right? This image is not coming in this. So this, yes, this delta will not work for this c2, right? This delta will not work for c2, right? So we have to choose some delta. Yes, sir. So अब delta क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे हमें, epsilon equal to half के लिए 1/8 we have to 1/4 take ले it, लेना पड़ेगा. we have to take it very small, right? ऐसा, लेकिन हम ले सकते हैं इसको बहुत small, क्यों ले सकते हैं?
क्योंकि कितना भी बड़ा राइज है, राइज को तो कंट्रोल कर ही सकते हैं हम, है ना। हम इसके अराउंड इतना छोटा ले लेंगे कि ये अपने आप ही हमारे इसके इतना ये रीजन में आ जाए और जिससे इसमें आ जाए, राइट। वी कैन ऑलवेज टेक सच एन वो डेल्टा, हम डेल्टा को 1/100 कर देंगे या 1/1000 कर देंगे, ठीक है ना। आगे जितना भी बड़ा राइज है वी कैन ऑलवेज कंट्रोल इट। अगर राइज जो है ये इनफाइनाइट को नहीं जा रहा है, ठीक है ना, इफ दिस इज नॉट गोइंग टू इंफिनिटी देन वी कैन ऑलवेज कंट्रोल दिस राइज। जितना भी बड़ा है उसको उससे बड़ा नंबर ले लेंगे, है ना। यस यस सर। ठीक है। सो वी कैन ऑलवेज, जैसे अब इन दोनों में डिफरेंस जैसे है, यहाँ पे हमें पता चल गया कि इन दोनों में डिफरेंस इज योर 7.8 minus 2.9, व्हाट इज द डिफरेंस, इट इज approximately योर डिफरेंस इज 5, ठीक है ना, 5 का डिफरेंस है। तो यू कैन टेक 1/5 या 1/8, सो समथिंग लाइक दैट, 1 बाई नो सॉरी, क्योंकि हाफ लेना है तो 1/10, 10 से बड़ा कुछ भी, 10 से बड़ा नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी लोगे तो इट विल वर्क, ठीक है। सो वी कैन ऑलवेज कंट्रोल दिस, क्योंकि हमारा ये कंट्रोल्ड में है, दिस ये जो हमारा एफ ये कंट्रोल्ड है, जब तक ये कंट्रोल्ड है दिस इंटरवल, ठीक है। ये कब कंट्रोल में रहेगा, जब यहाँ पे दोनों फाइनाइट पॉइंट्स होंगे, जो भी फाइनाइट पॉइंट होंगे उसका डिफरेंस ले लो, उसमें जो भी एप्सिलॉन चाहिए उसके हिसाब से उसको नंबर को यू कैन ऑलवेज गेट इट, ठीक है। यू कैन ऑलवेज कंट्रोल दिस नंबर, राइट। यस सर। Yes. सो Yes. ये कब कंट्रोल में रहेगा, व्हेन दिस इज एन इंटरवल, ये इंटरवल होना चाहिए, ठीक है। और इंटरवल कब होता है, ये कंटिन्यूस इमेज ऑफ एन इंटरवल, ओ कंटिन्यूस। सो अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तुम्हारा और अगर इंटरवल जो है बाउंडेड है तो हमेशा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस मिल जाएगा तुम्हें, अगर एंड पॉइंट्स पे वो इनफाइनाइट की तरफ नहीं जा रहा है। अगर जैसे 1/x होता है, ये जैसे अगर हमारा ये फंक्शन होता है 1/x, अगर यही ले लें, ठीक है। इफ नाउ इफ वी लुक एट दिस फंक्शन, इफ वी लुक एट दिस फंक्शन, ठीक है, 1/x on the interval 0 to infinity, okay. So I am considering 1/x on the interval 0 to infinity. So its graph is like this, fx equal to 1/x on 0 to infinity. Now अब क्या हो रहा है ना, अगर अब यहाँ पे जो है it is going to infinity plus infinity, right, at around 0 it is approaching to plus infinity around 0, right. Yes. यस सर। So अगर मैं epsilon equal to half लेता हूँ, if I take epsilon equal to half, then I will be able to find a point in this interval, right. यहाँ पे एक ऐसा point मैं बहुत ही close ले लूंगा such that इसके लिए कोई भी डेल्टा काम नहीं करेगा, ठीक है ना। epsilon equal to half ले लिया और कोई भी डेल्टा greater than 0 ले लूंगा, मैं कितना छोटा से छोटा कर लूँ इसको डेल्टा को, but I will always be able to find 2 points such that x minus y is less than delta, लेकिन उनकी इमेज जो है fx minus fy ये बहुत बड़ी हो जाएगी, this becomes greater than epsilon. Yes, I can always choose such 2 points क्योंकि ये इनफाइनाइट को जा रहा है, this is going to infinity. So जब हम बहुत ऊपर चले जाएंगे, जब whenever x will be very close to x, then difference between जो अगर दो पॉइंट्स बहुत क्लोज भी हैं तो उनका लेकिन इमेज का डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, ये एकदम से चढ़ रहा है ऊपर। अब जैसे यहाँ पे देखो, if you look at this, so if you look at this, suppose this is your 1, this is your 2, this is your 3, this is your 4 and this is your 5. Now difference between f of 4, f of 5 and f of 4 is very small, right. This difference is very small. Yes, it is almost so very small, but as you are approaching to 1, अब जैसे 2 f of 2 और 1 में कितना डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 1 का डिफरेंस हो गया, राइट। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे दिस डिफरेंस विल बिकम वेरी लार्ज। सो डेल्टा कोई भी लोगे यू विल बी एबल टू फाइंड 2 पॉइंट्स सच दैट उनका जो इमेज है वो बहुत बड़ा है, वो एप्सिलॉन से बड़ा मिल जाएगा तुम्हें। सो दिस फंक्शन विल नॉट बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ठीक है। इज इट तो फाइन? सर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी के लिए बाउंडनेस होनी चाहिए।
यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस के लिए एक तो फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट पे नहीं अप्रोच करना चाहिए, ठीक है, कहीं किसी भी Okay, sir. जगह पे फंक्शन शुड नॉट अप्रोच टू इन्फिनिटी। लेकिन अब एक इसमें भी एक चीज आ जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है इन्फिनिटी पे बहुत फास्टली वो राइज कर रहा है। बट लेट अस फर्स्ट ऑब्जर्व कि क्या होता है, ज्योमेट्रिकली क्या डिफरेंस होता है। सो इफ वी टेक fx इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, so minus infinity to infinity, right? So this again, if you can see, this is approaching to infinity, right? This is also approaching to infinity, ठीक है। अपने इस डोमेन में ये बाउंडेड तो है नहीं, अगर बाउंडेड है तो फिर आराम से काम हो जाएगा, हम किसी भी डेल्टा को इस तरह से चूज कर सकते हैं कि काम हो जाए। बट दिस इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी अगर एप्सिलॉन कुछ भी लेते हैं हम, जितने से जितना स्मॉल ले लें, तो हम डेल्टा भी उस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो है इसके हिसाब से चल रहा है। x माइनस वाई उस तरह से ले सकते हैं, राइट। x और y हमेशा ऐसे चूज कर सकते हैं। x डेल्टा को क्या लेंगे हम इस केस में कि एफ एक्स माइनस एफ वाई वो हो जाए एप्सिलॉन से छोटा। इसके लिए डेल्टा क्या लेना होगा हमें, कोई भी डेल्टा वर्क कर जाएगा। डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन वर्क करेगा, या एप्सिलॉन से छोटा, ठीक है। सो अगर डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन ले लिया तो एफ एक्स माइनस एफ वाई विल बी लेस देन डेल्टा। सो दिस इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। अगेन इसमें भी इट इज गोइंग टू इन्फिनिटी, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज गोइंग टू इन्फिनिटी इन अ लीनियर सेंस, ठीक है, ऐसे एकदम से राइज नहीं हो रहा, इट इज गोइंग टू इन्फिनिटी इन अ लीनियर सेंस। तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो अगर इस तरह का राइज है ना, इस तरह का राइज है, तो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। इफ इट इज गोइंग लाइक दिस, इस तरह का राइज है, तो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हम, ठीक है, क्योंकि ये बाद में जाके इनफाइनाइट पे प्रॉब्लम करेगा। जहाँ पे भी जिस भी जगह पे इनफाइनाइट को हो रहा है, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इफ अगर एक और फंक्शन लेते हैं विच इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, सो उसमें क्या है, अगेन इट इज गोइंग टू इन्फिनिटी। सो इस बार लेते हैं रूट एक्स, ठीक है। रूट एक्स का ग्राफ कैसे होता है, यस, पैराबोला ही होता है, मीन्स पॉजिटिव एफ एक्स स्लोप। एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ इस तरह से होता है, ठीक है। यस। सो इसमें क्या हो रहा है ना, अब इसमें अगेन इट इज गोइंग टू इन्फिनिटी, सो एफ एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, राइट। बट स्टिल इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, क्योंकि इसका जो है ये जो राइज हो रहा है, इसको हम हमेशा कंट्रोल में कर सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि इस तरह का राइज है, सो ये एक तरह से लीनियर से छोटा ही है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स हमारा इस तरह से जाएगा, इसके में तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स तो इस तरह से जाएगा, राइट। ये वन 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 पे वन के बाद ये नीचे होता जाएगा इससे, राइट, रूट एक्स का, यस। यस सर। तो इसके राइज को वी कैन ऑलवेज कंट्रोल, बट एक्स स्क्वायर के राइज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगेन इट इज गोइंग लाइक दिस, वो इस तरह से चल रहा है, ठीक है, इस तरह से चल रहा है। सो ये जैसे 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 मतलब इस तरह का मतलब क्या है कि अब जो है ये एक्स वाई हमारे बहुत क्लोज होके भी ये जो डिस्टेंस उनका है ये बढ़ते जा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, ये बिल्कुल एक तरह से ऊपर चढ़ रहा है, ये भी इनफाइनाइट पे जा रहा है, बट इट इज गोइंग स्लोली स्लोली स्लोली। सो डिस्टेंस जो है पॉइंट्स का अगर कम हो रहा है, तो ये डिस्टेंस ये इनका भी कम ही रह रहा है, इनका नहीं बढ़ रहा है, right, it is going to infinity, लेकिन it is going to infinity slowly and slowly, but this is rising to infinity very fast। ये सीधे एक पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा चढ़ने लगता है। अब इन दोनों में जैसे f of 9 is 81 and f of 10 is 100, so there is big difference। ऐसे अगर f of you will take 99 and f of 100, there will be a big difference, right। क्या हो जाएगा, 100 square minus 99 square, so this is 100 प्लस 99, इतना डिफरेंस आ जाएगा, राइट, 199 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। अभी हमने डिस्टेंस 1 ही रखा हुआ है, बट इट हैज इंक्रीज सो मच, राइट।
और ऐसे ही देखो जैसे ये f of, if you see this f of, if you take f of 1000 and f of 999, so again the difference is 1999, right? So although the distance between these two points are one only, यहाँ पे कंट्रोल था, अगर एप्सिलॉन हमारा कुछ छोटा होता तो यहाँ पे कंट्रोल्ड था, but as we are increasing our number, although the distance between the points we have fixed, but still this difference is approaching to infinity, right? This is approaching to infinity, although our x minus y is equal to 1, right? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So इसीलिए अगर इस तरह का राइज है तो हमें प्रॉब्लम है। अब जैसे अगर हम रूट का देखें, इफ यू टुक एट लिक्विड रूट, सो 1000, चलो 10,000 ले लेते हैं, इसका रूट इज 100, एंड व्हाट अबाउट दिस रूट ऑफ 999, this will be approximately your 99 point something, right? It will be very close to this. Let me just calculate and give you the value. It is 99.99, right? Yes. So see, you can see, but in fact if you see this f of your 10 or f of 10, तो मतलब f of 4 ले लो, and f of 4 and f of 3, the points are, so this is 2, and what will be this root 3 का क्या होता है 1.73 something, right? So see, the difference is decreasing, although we have fixed the distance, but यहाँ पे root x के केस में the distance is decreasing, यहाँ पे x square के केस में it is going to infinity, so हम इसे control नहीं कर पाएंगे, right? We can't control it, चाहे हम कुछ भी एप्सिलॉन ले ले, इसे डेल्टा से हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कितना भी छोटा ये डेल्टा कर लेंगे यहाँ पे, we won't be able to control it, ठीक है? So x square is not uniformly continuous, fx equal to x square is not uniformly continuous on your minus infinity to infinity, although it will be continuous on a bounded interval, क्योंकि bounded interval में this will not go to infinity, so हम इसको control कर सकते हैं हमेशा, जिसमें भी अगर ये distance difference it is not going to infinity, then we can always control it, right? If this distance, Yes, sir. अगर हम x y को fix कर लें, if we fix this but still this keeps on increasing, then that means we won't be able to, so this is geometrical interpretation, ये बाकी सारा हम देखेंगे। so समझ आ गया continuity और uniformly continuous में क्या difference होता है geometrically? by definition तो ये होता है कि हमें जो delta है, this in continuity we just need the delta to be any delta which can depend on c and epsilon, but uniformly continuous में हमें delta जो है independent of the point लेना होता है, it is uniform for all over the interval, it should be uniform over the interval, right? So definition wise this is the difference, and geometrically continuous और uniformly continuous में क्या difference है कि sudden rise नहीं होना चाहिए उसके अंदर, the function should not go to infinity with a sudden rise, it can go to infinity but the rise should be more, क्या कह सकते हैं, rise should be very slow, ठीक है? rise should not be very steep, it should be slow rise, it may go to the infinity, so कई बोल देते हैं कि infinity पे नहीं जाना चाहिए, but it may go to infinity, but the rise should be not steep, it should not be a sudden rise, it should be a slow rise to infinity, ठीक है? सर Yes, sir. सर पर डेल्टा की वैल्यू तो हम लोग चेंज कर सकते हैं ना, मतलब यूनिफॉर्म में भी। हाँ डेल्टा की देखो डेल्टा, लेकिन एक फिक्स रखोगे ना, एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग फिक्स रखोगे, एप्सिलॉन चेंज करोगे तो डेल्टा चेंज करोगे, बट वंस यू हैव फिक्स्ड एन एप्सिलॉन तो एक डेल्टा ऐसे ढूंढना पड़ेगा जो तुम्हें पूरे इंटरवल पे काम कर रहा है। यहाँ पे देखो जैसे एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ लिया था हमने इस केस में, इफ यू लुक एट दिस, हमने एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ लिया था, तो इसके लिए इस पॉइंट पे डेल्टा 1 इक्वल टू 1/2 काम कर रहा था, इसके लिए नहीं कर रहा था, तो इसके लिए जो कर रहा होगा वो इसके लिए भी काम कर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ऐसा पॉइंट लेंगे जो पूरे इंटरवल पे काम कर रहा है। सो क्योंकि ये बाउंडेड है, हम ऑलवेज ये बाउंडेड है हमारा, ये अपना बाउंडेड है, सो वी कैन ऑलवेज कंट्रोल इट, जो भी डिफरेंस होगा हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? वी कैन ऑलवेज कंट्रोल इट, जो भी ये हाईएस्ट डिस्टेंस है उसी से डिवाइड कर दो ट्वाइस करके, तो अपने आप ही आ जाएगा तुम्हारा, हमेशा इससे छोटा रहेगा, ठीक है? सो यू कैन ऑलवेज कंट्रोल इट। Yes,
अगर फंक्शन अनबाउंडेड नहीं है इंटरवल पे, मतलब फंक्शन इज नॉट अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ऑन द इंटरवल, तो सबसे इजी है डेल्टा चूज करना। उसको उसी से मतलब इसका जो डोबिट डिस्टेंस आ रहा है fx माइनस fy मैक्सिमम डिस्टेंस, जो मतलब कि बेसिकली और m माइनस m सुप्रीमम माइनस इन्फिमम, इससे डिवाइड कर दो पूरा जो भी अपना डेल्टा उस जिस हिसाब से चाहिए। सो बेसिकली इस पे आ जाएगा काम, ठीक है। सो वी कैन ऑलवेज चूज अ डेल्टा अगर हमारा बाउंडेड है। अगर अनबाउंडेड भी है लेकिन द राइज इज नॉट स्टीप, राइज infinite पे जा रहा है, so function is unbounded, but if the rise is not steep then we can always find one delta। वो find करना सीखेंगे हम, but अभी हम जो है देख रहे हैं कि क्यों क्या कब चूज कर पा रहे हैं कब नहीं चूज कर पा रहे हैं, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे भी this is approaching to infinity but it is approaching to infinity very slowly, और slowly rise कर रहा है, इसलिए this is uniformly continuous on this interval 0 to infinity, right? This function is uniformly continuous on 0 to infinity। ठीक है, लेकिन fx equal to x square में there is a steep rise, so you cannot control it। so fx equal to x square will not be your uniformly continuous। अब जैसे fx equal to ex है, if you look at this graph again fx equal to ex, क्या होगा उसमें? will it be uniformly continuous on the interval 0 to r or 0 on the interval r on this set of real numbers? ठीक है, so there is steep rise, there is a steep rise। so इस तरह यहाँ पे जैसे जैसे पॉइंट्स बढ़ाते जाओगे डिफरेंस, अब यहाँ पे डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल व्हेन पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू, जब पॉइंट्स को क्लोज नहीं भी लोगे, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस बिकम्स वेरी लार्ज। ठीक है, यहाँ पे कितना डिस्टेंस हो रहा है देखो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, कैन सी। सो इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा जब ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। ठीक है, सो fx इक्वल टू ex इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन r। ठीक है, इट विल बी कंटिन्यूअस ऑन अ बाउंडेड सेट। वो हम सारी अभी प्रॉपर्टीज हम थ्योरम्स करेंगे तो वी विल लर्न ऑल दिस, लेकिन अभी जो है बस हम ज्योमेट्रिकली देख रहे हैं। सो व्हाट इज द ज्योमेट्रिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन geometrically what is the difference between continuous and uniformly continuous function? वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, उसमें कंटिन्यूटी के साथ क्या होना चाहिए? तो सडनली इंक्रीज नहीं करना चाहिए। कंटिन्यूअस फंक्शन should not have a steep rise, ठीक है, in the domain। so it may approach to infinity in the domain but the rise should be minus infinity। ठीक है, बट द राइज और फॉल जो भी है, मतलब वो डिपेंड करेगा ना, फंक्शन डिक्रीज भी तो कर सकता है। सो राइज और फॉल should be very slow like in fx equal to root x। ठीक है, very slow like in fx equal to root x। ठीक है, या माइनस रूट और fx equal to minus root x। ठीक है, so although these are approaching to infinity but they are very slow, they are approaching to infinity very slowly। ठीक है, steep rise नहीं होना चाहिए। continuous function should not have a steep rise in the domain। fine, it may approach to plus infinity or it may approach to minus infinity but the rise or fall should be very slow, it should not rise very fast। ठीक है, क्योंकि तब हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हम किसी डेल्टा से। ठीक है, सो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी समझ आ गया सबको, क्योंकि ये बहुत सारे इंटरव्यूज में दे में आस्क यू दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस फंक्शन, या तुम्हें दे देंगे कि बताओ fx इक्वल टू x स्क्वायर ऑन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, सो वो पूछ लेंगे कि क्यों है, देख के अब, या कोई फंक्शन ही दे दिया तुम्हें ड्रॉ करके कि अगर ये फंक्शन जैसे ये ड्रॉ करके दे दिया कि ये एग्जांपल दे दिया और ये दो इस तरह से ड्रॉ करके दे दिए, and they might ask you to determine by looking at the graph which one is
यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस एंड विच वन इज नॉट. सो जिसका ग्राफ इस तरह से है जो स्लो राइज कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, दैट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस. जिसका राइज में इस तरह का जंप आ गया, सो दैट इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस. फाइन. यस सर. ठीक है. हेलो ओके. यस यस. सर, फंक्शन का बाउंडेड होना नेसेसरी नहीं है. बाउंडेड हो या ना हो फिर भी वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हो सकती, कंटिन्यूस हो सकता है. यस, वो फंक्शन जो है इनफाइनाइट पे अप्रोच कर सकता है, but still it can be uniformly continuous provided it is approaching to infinity or minus infinity very slowly. ठीक है. यस सर. अब बाउंडेड है तो फिर हमारा हो जाएगा कंटिन्यूस फंक्शन. अगर बाउंडेड है किसी इंटरवल पे तो वो हमारा हो जाएगा वहां पे यूनिफॉर्मली. वी विल लर्न ऑल दिस रिजल्ट्स. अभी हम करेंगे रिजल्ट्स थियोरेटिकली, तो हम सारा कुछ सीखेंगे कि क्यों होता है, कैसे होता है. बट ज्योमेट्रिकली ये है बेसिकली डिफरेंस कि दे शुड नॉट बी अ स्टीप राइज. जैसे अब यहाँ पे भी स्टीप राइज है, बट बिकॉज आवर इंटरवल इज बाउंडेड वी हैव टेकन 1 to 5, तो इसलिए हमारा काम चल रहा है. ऑल्दो देयर इज अगेन दिस इज राइजिंग वेरी फास्ट. तो अगर इसको हम इनफाइनाइट तक ले जाते हैं इस इंटरवल को, तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ना भी होता. ठीक है, अगर इस तरह का ये इनफाइनाइट पे हो रहा है तो. बट बिकॉज दिस वी हैव बाउंडेड आवर डोमेन, सो इसलिए जो है ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो गया है, क्योंकि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. डेल्टा को बहुत स्मॉल कर लेंगे कि क्योंकि फिर ये क्योंकि बाउंडेड इंटरवल है तो यहाँ पे वी आर एबल टू कंट्रोल इट. ठीक है. अब यहाँ पे भी बाउंडेड इंटरवल है, यहाँ पे भी बाउंडेड इंटरवल है, बट इट इज गोइंग टू इंफिनिटी, सो फंक्शन इज नॉट बाउंडेड. ठीक है. राइट. यहाँ पे भी तो 0 to 5, अगर हम 0 to 5 भी लें इंटरवल तो इट इज बाउंडेड इंटरवल. बट क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि फंक्शन इज नॉट बाउंडेड इन दिस इंटरवल. फंक्शन जो है बाउंडेड होना चाहिए उस इंटरवल में, तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस को कंट्रोल कर लेंगे. fx माइनस fy लेस देन एप्सिलॉन चाहिए हमें, तो हम ऐसा डेल्टा चूज कर लेंगे कि ये कंट्रोल में आ जाए अपने, है ना. यस, यू कैन ऑलवेज डू सच अ थिंग. बट अगर वो ही अगर यही कंट्रोल नहीं हो रहा, ये जब इनफाइनाइट की तरफ भाग रहा है तो यही कंट्रोल नहीं होगा, दिस विल गो टू प्लस इन्फिनिटी. तो हम इसे एप्सिलॉन से छोटा कैसे बनाएंगे. ठीक है. Okay, so I think this today let us end this class here only. ठीक है. So we will learn more things about this uniform continuity in our next class, that is tomorrow. We will learn. अब तो बस मैथमेटिकली देखना है हमें कि क्या करना है. ठीक है. यस, क्योंकि ज्योमेट्रिकली तो हमने देख लिया है कि व्हाट इज अ यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस फंक्शन. और चलो एक मैं फॉर्मल डेफिनेशन पेस्ट कर दूं जस्ट. वैसे already we have written it. So uniform continuity. बाकी we will learn it more. अभी पूरा clarity हो जाएगा कि क्या होता है uniform continuous function. ठीक है. So f is uniformly continuous only if for each epsilon there is a delta which depends only on epsilon, such that for any 2 points in A, if we take the difference between them to be less than delta, then their images, the distance between their images should be less than epsilon. So this is the definition of uniform continuity. कल हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे और देखेंगे कि उसमें यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस कैसे प्रूव करना है. अभी तो हमने ज्योमेट्रिकली देखा है. नाउ वी विल सी कि fx इक्वल टू x स्क्वायर क्यों नहीं है यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस, fx इक्वल टू रूट x क्यों है यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस. सो ऑल दीस थिंग्स वी विल प्रूव इट. fx इक्वल टू x, अगेन इट इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, बट व्हाई इट इज यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस. राइट. जैसे fx इक्वल टू x है, सबसे सिंपल एग्जांपल है इसमें, तो क्योंकि हमारा ये x माइनस y के ही टर्म्स में आ जाता है. राइट. सो हमें पता इजीली दिख रहा है कि डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन लेंगे तो काम बन जाएगा, चाहे फिर कोई भी 2 पॉइंट्स हो. So again this is approaching to infinity, so again you can say that it is unbounded on the set of real numbers, but still it is uniformly continuous. So ये क्यों है, क्योंकि हम we are able to, ये इसमें rise जो है वो steep नहीं है, it is rise is very slow. ठीक है ना, rise is slow, आराम से चल रहा है. जैसे जैसे हम y को बढ़ा रहे हैं उसी तरह से ax जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाता है, x स्क्वायर भी बहुत तेजी से ग्रो करता है. तभी तो कहते हैं ना, जैसे if you have looked, वो अभी जो हम उसकी बात कर रहे थे, ये कोरोना के जब ग्राफ की बातें हो रही थी,
सो यू मस्ट हैव सीन कि लोग कह रहे हैं कि इट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, और ये इसमें जैसे जैसे डेज बढ़ रहे हैं हमारे द नंबर ऑफ केसेस, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ न्यू केसेस एंड द नंबर ऑफ केसेस बीइंग वो क्योर्ड, जो ठीक हो रहे हैं, उनके केसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा था, राइट? तभी तो इतना बड़ा नंबर हो गया था वो। अगर लीनियरली चलता रहता है इसकी तरह तो आराम से हमारे कंट्रोल में रहती चीजें, लेकिन एकदम से स्पाइक आता है। स्पाइक का मतलब क्या है कि देयर इज अ ह्यूज राइज, सो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे हम, राइट? सो वो उस तरह के फंक्शंस क्या होते हैं, वो पॉलिनोमियल फंक्शन जनरली होते हैं, वो x टू द पावर ये 1 से बड़े होते हैं, ठीक है? ऑल सच फंक्शंस, उसकी पावर जो है x से बड़ी, ये 1 से बड़ी होगी पावर यहाँ पे, तो ठीक है। सो उसकी डिग्री जो है वो बेसिकली उसकी डिग्री जो होगी दैट वुड बी ग्रेटर देन 1। सो वहां पे क्या होगा कि देयर विल बी अ राइज, बिग राइज, जैसे जैसे x बढ़ते जाएगा हमारा राइज बढ़ते जाएगा। तो कोई कह रहे थे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या है कि देयर इज स्टीप राइज, ठीक है ना? एक तो लीनियर ग्रोथ है और एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। लीनियर ग्रोथ में क्या है कि ग्रोथ इज वेरी स्लो, आराम से एक लाइन पे चलते जा रहा है, ठीक है ना? चाहे ये फंक्शन ले लूं, इफ आई टेक दिस फंक्शन आल्सो, if I take this also, this graph also, ठीक है? so again this is a linear rise। दिखने में तुम्हें दिख रहा है कि बहुत तेजी से जा रहा है, but it is a linear rise, लेकिन ऐसा होता है तो it is not linear। अगर इस तरह से होगा तो it is not linear, ठीक है? क्योंकि जो इनफाइनाइट के पास ये बहुत वैसे बिहेव करता है जहाँ पे इनफाइनाइट जा रहा होता है, ठीक है? so we will learn all these things। so this जो अभी मैंने बनाया, this is again तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत तेजी से राइज कर रहा है, but it is a linear rise, ठीक है? so linear है तो स्लो ही है वो, that is not considered a very fast rise, ठीक है? fine। clear? is it clear everyone? यस सर। ठीक है? Yes, so sir. Yes, sir. okay, okay, fine। so let us now end this class। किसी को कुछ पूछना है? if anyone have any question? Yes, sir. yes प्रिंस बोलो। Sir, exercise 5.3 में क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, let me just check। exercise 5.3 question number 17। okay, f is a continuous function that has only rational values। show that f must be a constant function। prove your assertion। so कैसे करा तुमने? सर इसमें मतलब दो केस में हम लोग को सॉल्व करना होगा। फर्स्ट जब फंक्शन रेशनल, जब रेशनल है फर्स्ट रेशनल केस में और दूसरा इरेशनल में, तो सर नहीं नहीं नहीं, बेसिकली देखो, अच्छा let me just take यहाँ पे कर दूं मैं, ठीक है? so on the new page, so let me just copy paste the question here। now f is given to be continuous, ठीक है? so your f given, you are given that f from 0 1 to r is continuous, right? and second, f of 0 1, that is the range of this set, is contained in q, set of rational numbers, मतलब कि that is fx belongs to q for all x belonging to 0 1, right? we are given this, right? यस सर। अब हमें क्या प्रूव करना है? to show f is not constant, right? so we have to show that f is not constant। so what you will do, अगर constant नहीं prove कर, sorry f is constant, हमें ये prove करना है। so what you will do, अगर तुम्हें constant prove करना है, so you will show that it has the same value at all points, right? you will have to show that it has the same values at all the points, right? यस सर। so उसके लिए क्या करोगे? सर कोई आर्बिट्री पॉइंट ले लेंगे। उसके लिए नहीं, आर्बिट्री पॉइंट नहीं, बेस्ट है कि काउंटर पॉजिटिव अप्रोच लगाओ, क्योंकि वो तो रैशनल पे ही जाएगा ना, कोई भी है तो उससे अलग नहीं बता पाओगे। सो यहाँ पे क्या करोगे, यू विल टेक, सो कंसीडर, सपोज f इज नॉट कांस्टेंट, suppose f is not constant, then what will happen?
अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा? यस, कोई दो ऐसे पॉइंट पक्का होंगे इनकी वैल्यू अलग अलग होगी। yes, we will there will be 2 points at which the value will be at least 2 points, मतलब और सारे बराबर हो, लेकिन ऐसे 2 पॉइंट्स तो मिल जाएंगे जहां पे हमारी वैल्यूज बिल्कुल अलग होगी, राइट? इज इट राइट? यस सर। यस सर। 2 पॉइंट ऐसे मिल गए जहां पे पॉइंट्स अलग हो गए, तो क्या होगा उससे के बाद? तो सर उसके बाद हम लोग डेंसिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम उन दोनों के बीच में एक पॉइंट ले सकते हैं, so, उसको हम लेंगे इरेशनल नंबर, राइट? यस सो देयर यस एग्जिस्ट 2 points x1 x2 belonging to your 0 1 डोमेन, अभी 0 1 है, r नहीं है, सो डोमेन में मिलेगा हमें 0 1 such that इसमें मतलब रैशनल इरेशनल का कुछ है ही नहीं, f of x1 is not equal to f of x2, ठीक है? So what does this imply? So without loss of generality we can assume that one of them is small, ठीक है? कोई भी एक small है तो हम मान लेते हैं कि f of x1 is less than f of x2, ठीक है? ये without loss of generality we can assume this, right? Then अब ये दोनों रियल दो रैशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में एक इरेशनल होगा। बाय डेंसिटी थ्योरम there exists k belonging to q complement such that fx1 is less than k less than fx2, ठीक है? यस, यस सर। सो यहाँ से बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या आएगा? क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस है, सो बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम there exists 8.3 c belonging to r, oh sorry 0 1 डोमेन में such that f of c is equal to k, लेकिन अब हमारा क्या है? this belongs to q, f of c will belong to q because it is an image, और हमने already ये हमें given है कि this should belong to q, right? so contradiction आ गया। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये irrational है, यहाँ पे कह रहे हैं rational है कि is rational, contradiction, ठीक है? so hence our Yes, sir. function is constant function, so ये इस तरह से easily कर सकते हो। अब यहाँ पे रैशनल की जगह इरेशनल दिया होता तो बस कुछ नहीं था, फिर तुम k को रैशनल पिक कर लेते तो काम बन जाता, ठीक है ना? इरेशनल के लिए प्रूव करना है, इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है सर। ब्रैकेट के लिए मतलब इसका मतलब है कि अनदर क्वेश्चन है जहाँ पे रैशनल की जगह इरेशनल है तुम्हारे पास, कि द फंक्शन हैज ओनली इरेशनल वैल्यूज, अगेन यू हैव टू प्रूव दैट इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। सो उसके लिए अगेन व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल अज्यूम, सो यहाँ पे फिर q कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और you will assume that f is not constant, so you will be able to find 2 points इस तरह से, फिर उसके बीच में k ले लोगे, लेकिन इस बार k जो है रैशनल लोगे, फिर अगेन बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, सो यहाँ पे फिर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। फाइन? यस सर। Any other question? नो सर। Okay, fine, so then we end this class now, okay? So bye everyone, have a good day. थैंक यू सर। Thank you for watching this video. To stay updated, please subscribe to our YouTube channel, Cosmos Learning. Happy learning through Cosmos Learning. To watch more, click on any of these cards. Thank you once again.